السلام علیکم دوستو، آج آپ کو بتانا ہے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کسی بھی کلاس کی ڈگری جب منگوائیں گے تو آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ میں آپ کو سارے سٹیپس جو ہیں وہ ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اس پہ آ جائیں کہ آپ آن لائن چلان آپ نے جنریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کافی اولڈ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے وہ رزلٹ کارڈ اس پورٹل سے نکالنا ہوتا ہے، اور اگر آپ ریسنٹ یعنی ابھی 2021-22 کے بعد کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ CMS پورٹل ظاہر آپ کے پاس ہوگا، تو یہاں سے آپ نے اپنی مکمل ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ نکالنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ڈگری فارم اس کو آپ فل کرتے ہیں۔ یہ سارا فل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کے ایڈریس کے اوپر ان ڈاکومنٹ کو بائی پوسٹ بھیجنا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کرنے کا بھی طریقہ موجود ہے، مینول بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جو آن لائن ہے اس پہ یونیورسٹی اتنا رسپانس نہیں دیتی۔ تو میرا خیال ہے آپ کو اگر آن لائن آپ اپلائی کرتے بھی ہیں تو آپ کو مینول بھی ڈاکومنٹ بھیجنا ضروری ہے۔ آپ بہتر ہے کہ مینول ڈاکومنٹ بھی اس ایڈریس کے اوپر بھیج دیں۔ آئیے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مکمل طریقہ دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ آپ ڈگری فارم کا ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ڈگری فارم آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ آپ آ جائیں گے AIOU کی ویب سائٹ کے اوپر۔ AIOU کی ویب سائٹ آپ اوپن کریں گے تو اس میں ایک ڈاؤن لوڈ سیکشن ہوگا۔ آپ بالکل باٹم پہ آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ سیکشن ہے، یہاں پہ ہوگا جی ڈگری فارم، ٹھیک ہے جی۔ ویریفیکیشن فارم بھی ویسے آپ یہاں سے ہی لیں گے، ڈپلیکیٹ اگر اپلائی کرنا ہو تو وہ بھی یہیں سے آپ کو ملے گا۔ تو ڈگری فارم آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، یہ میں نے آلریڈی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ اب آپ اس کو فل کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس فارم کے اوپر آ جائیں، یہاں سے آپ اپنا پروگرام کا نام لکھیں گے۔ آپ کا BA جنرل ہے، D کام ہے، B کام ہے، BS انگلش ہے، جو بھی پروگرام کا نام ہے وہ لکھیں گے، نام لکھیں گے اور والد صاحب کا نام لکھیں گے۔ رجسٹریشن نمبر آپ کو مل چکا ہوگا، وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ CMS پورٹل والا جو ID ہوتا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ CMS پورٹل والا ID آپ یہاں پہ لگا لیں گے۔ اس کے بعد اپنا نام اچھے طریقے سے میٹرک کی سند کے مطابق لکھنا ہے۔ آپ نے ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ AIOU میں ڈگری یا ٹرانسکرپٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے نام کے کریڈینشیل لازمی چیک کر لیں۔ اگر نام میں کوئی غلطی ہے، سپیلنگ میں، فادر نیم میں، تو وہ پہلے ٹھیک کروانا ضروری ہے، تب آپ ڈگری کے لیے اپلائی کریں گے۔ اچھا، نام فادر نیم لکھ لیں گے، یہ ایک سپیس لازمی چھوڑ دینی ہے، جیسے عالیہ بی بی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح حسین علی ہے تو یہاں حسین اور علی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ ایک اور چیز لکھنی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرانے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یعنی اولڈ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کا پیپر کوئی ریپیئر ہوتا ہے، ری اپیئر ہوتا ہے، یہ سپلی ہوتی ہے، حالانکہ آپ اس کی فیس پے کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کا رول ہے کہ وہ ری اپیئر فیس آپ کو دوبارہ پے کرنا ہوتی ہے۔ فی الحال یہی رول ہے، ممکن ہے کل کو ختم ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ری اپیئر اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک سیمیسٹر جو ہے وہ ابھی پیپر دینے تھے اور آپ نے نہیں دیے، اگلے سیمیسٹر میں دیے ہیں، تو جتنے سبجیکٹ آپ نے اگلے سیمیسٹر میں دیے ہیں تو حالانکہ فیس آپ نے پے کی ہوگی لیکن وہ سارے ری اپیئر میں جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا سبجیکٹ فیل ہوتا ہے تو آپ دوبارہ اس کو پاس کر لیتے ہیں، وہ بھی ری اپیئر میں جاتا ہے۔ تو فی الحال اگر آپ کو ان چیزوں میں کنفیوژن ہو تو آپ بے شک اس فیس کو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں آپ کو کلیئر بتا دوں گا۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں ری اپیئر فیس کیا ہے تو آپ پھر یہ کریں کہ آپ بے شک اس فی کو پے نہ کریں، ڈگری فیس پے کریں۔ اگر کوئی آپ کے ذمہ ہوگی تو وہ یونیورسٹی ویسے آپ کو بتا بھی دیتی ہے۔ بہرحال اگر آپ نے یہ آپ کے ذمہ کوئی ری اپیئر فی ہے تو وہ چلان نکالنے کا، دونوں ڈگری کا اور ری اپیئر کا، میں دونوں کا طریقہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب آپ آ جائیں جی سرٹیفکیٹ ڈگری فیس، جو آپ ڈگری سرٹیفکیٹ ارجنٹ اپلائی کر رہے ہیں یا نارمل، وہ آپ لکھ دیں گے۔ ری اپیئر اگر کوئی فیس ہے تو ظاہر وہ الگ چلان ہوگا، اس کی پرائس یہاں لکھ دیں گے، یہ 16 اور 2 1800 بن گیا۔ ظاہر 2 چلان نکلیں گے، ڈگری کا اور ری اپیئر کا، دونوں اوپر نیچے لکھ دیں۔ کس تاریخ کو جمع کروانے ہیں؟ بینک میں جمع کروانے ہیں تو بینک کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اگر بینک میں جمع نہیں کرانے تو آپ نے اگر ایزی پیسے سے فی پے کرنی ہے تو اس چلان کی ٹرانزیکشن ID یہاں لکھ دیں گے۔
आपने दूसरा जब चालान पे किया तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ नीचे लिख देंगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है, 2 चालान और दोनों की ट्रांजैक्शन आईडी लिख देंगे। इजी पैसा की सूरत में बैंक में जमा कराएं तो ज़ाहिर है वो एक ही बैंक का नाम होगा, उसका ब्रांच का नाम और वो सारी डिटेल लिख देंगे। तरीक़े पैदाइश आपने मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिखनी है। CNIC बिल्कुल ठीक लिखना है, इसकी कॉपी भी इस फॉर्म के साथ लगानी है। नेक्स्ट आ जाएं जी, यहाँ पे आप किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप फर्ज करो मैट्रिक की सनद रिजल्ट कार्ड दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को टिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे सनद मैट्रिक की सनद बमा प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड, यहाँ पे आप दोनों लिख देंगे। यानी यहाँ पे ये जो टैक्स है ना वो आप यहाँ पे लिख देंगे, राइट। अगर आप BA BSc की डिग्री बमा ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे BA BSc डिग्री बमा ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ कुछ नहीं लिखना, ये दफ्तर इस्तेमाल के लिए। समझ आ रही होगी मेरे ख्याल है आपको। आप B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे BA डिग्री बमा ट्रांसक्रिप्ट। सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट के लिए कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्ट लिखेंगे। लेकिन जब आपको ज़ाहिर रिजल्ट कार्ड नहीं मिला है तो आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दें। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको रिजल्ट कार्ड भेज दिया हो, एक तो होता है ना कि आप CMS पोर्टल से डाउनलोड करते हैं इस तरह का, तो अगर तो CMS पोर्टल वाला आपके पास है तो ज़ाहिर यूनिवर्सिटी आपको अलग से भेजती है, तो आप फिर उसका ज़ाहिर वेट करेंगे, जब वो आपके पास आ जाएगा तो फिर आप वो कर लेंगे। अगर आपके पास पहले रिजल्ट कार्ड हो तो सनद के लिए अप्लाई करें। अगर दोनों नहीं है, यूनिवर्सिटी ने नहीं भेजे, आपने CMS पोर्टल से डाउनलोड किए हुए हैं, तो ज़ाहिर है आपने फिर दोनों के लिए अप्लाई करना है। ये करने के बाद और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, नीचे आप अपना जो है वो मुकम्मल तौर पे अपना एड्रेस बिल्कुल ठीक टाइप करेंगे। एड्रेस में गलती नहीं करनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्यूमेंट जो है इसी एड्रेस के ऊपर भेजने हैं। तो ये एड्रेस आपने बिल्कुल ठीक करना। यहाँ पे आपने साइन कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको कौन सा चाहिए। नाम, फादर ने, मुकम्मल पता लिखना है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर लाजमी लिखना है। मैंने फ़िलहाल इस टाइप का लिखा है, आपको पता है कि वो फिर इशू बनता है, इसलिए मैंने फिर ये इस तरह का टाइप कर दिया। बाकी यहाँ पे आप फ़ीस वगैरह चेक कर लेंगे। सेकेंडरी स्कूल FA की आप सनद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BA के जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी ज़रूरी दस्तावेज़ात की लिस्ट आप यहाँ पे लाजमी चेक करेंगे। फ़र्ज़ करें आप मैट्रिक FA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक के लिए आप मिडल का सर्टिफिकेट ले लेंगे। FA के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिक की असल सनद जो आपको बोर्ड से मिली होगी उसकी तस्दीक शुदा कापी। तस्दीक शुदा कापी से मुराद ये है कि आप जो आपके पास असल मैट्रिक की सनद होगी उसको किसी आपने उस्ताद से, किसी कॉलेज के प्रोफेसर से तस्दीक करवा लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट कार्ड जो आपके पास होगा या CMS पोर्टल से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर है आप यहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ भी मैं वो तरीका आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने साथ लगानी है। बेफाम ये शनाख्ती कार्ड की कापी है, ओपन यूनिवर्सिटी के पास शुदा सारे रिज़ल्ट वो साथ लगाने हैं। ये फ़ीस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। चलान पे जो फ़ीस आएगी असल आपने वो पे करनी है। ये फॉर्म में ऊपर नीचे फ़ीस हो सकती है। ये आपने याद रखना है कि आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसकी आगे रिक्वायरमेंट आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद ये फॉर्म हो गया जी, ये फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद आपका हो गया, इसके साथ चलान लगा देने हैं। और एंड पे मैं बताता हूँ कि आपने आखिर यूनिवर्सिटी को क्या भेजना है। ये सबसे पहले तो आपने फॉर्म फिल कर लिया। अब आप आ जाएं जी CMS पोर्टल के ऊपर। CMS पोर्टल में साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ से अपना मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट या रिज़ल्ट कार्ड कैसे लगाना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर। यहाँ पे आ रहा है जी प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ से आपने डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, आप कौन सी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की जो भी है, इसको सेलेक्ट करके आप यूँ ही करेंगे सबमिट। तो आपके सामने जो है वो मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो शो हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह ये थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी अगर इंटरनेट अच्छा है तो जल्दी शो हो जाएगी। ये जी ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने शो हो जाएगी। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगर कंप्यूटर के ऊपर हैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे एक की होती है
कि कंट्रोल पी अगर आप कमांड प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी, तो ये प्रिंट की कमांड होती है। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हैं तो यहाँ देखिए सेव एज पीडीएफ आ गया, आप इसको सेव कर लेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगी, बाद में इसका आप प्रिंट निकाल लेंगे। वैसे ट्रांसक्रिप्ट आपको ऐसे शो हो जाएगी, आप इसको देख सकते हैं, इसमें सारा आपका रिजल्ट आ रहा होगा। बाज़ दफ़ा यहाँ टोटल नंबर ना भी आ रहे हों और अगर आप समझते हैं कि आपने डिग्री पास कर लिया है तो ये मुकम्मल होता है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब ये रिज़ल्ट कार्ड आपने यहाँ से निकाल लिया, इसको ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, इसको रिज़ल्ट कार्ड कहते हैं। ये काबिल कबूल नहीं होता एडमिशन वगैरह के लिए, आपको यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल लेना पड़ता है। अब आ जाएंगी कि आप यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड रिज़ल्ट है वो कैसे लेंगे। तो आप गूगल के ऊपर लिखेंगे AIOU ओल्ड रिज़ल्ट, AIOU ओल्ड रिज़ल्ट। अगर आपका कुछ रिज़ल्ट CMS पोर्टल पे शो ना हो रहा हो, यहाँ से आप ऑल लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे तो ये देखिए जी, ये आपका सारा जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखिए, इसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है ये रीअपीयर। इनकी फ़ीस जो मैंने उस टाइम आपको बताया था ना कि चालान अलग निकालना पड़ता है, वो ये होता है चालान निकालना, ये रीअपीयर। आप यहाँ से सब्जेक्ट गिनती कर लेंगे, कितने सब्जेक्ट रीअपीयर हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो इनका चालान कैसे निकालना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये तो हो गया रिजल्ट कार्ड, आपके CMS पोर्टल पे आपका सारा रिजल्ट आ रहा है तो वो एक ही काफ़ी है, फिर यहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं जैसे 2019 17 18 15 16 के हैं तो ज़ाहिर है आपके पास कोई रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर आप यहाँ पे लाजमी ऐड करना है, तो आप यहाँ से ये रिजल्ट निकालेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाएंगी कि आप चालान कैसे निकालें। आप यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे जी AIOU ऑनलाइन चालान, AIOU ऑनलाइन चालान, ठीक है जी, ओपन हो गया, इसको कर लें ओपन। यहाँ से जी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट, कैटेगरी स्टूडेंट और नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, नेम लिख देंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिखा, नेम लिखा, फादर का नेम। यहाँ से आप डिग्री फीस आपने ज़ाहिर करनी है। यहाँ पे वैसे सारे चालान की कैटेगरीज हैं, आप जो भी चालान निकालना चाहते हैं। फिलहाल हम सर्टिफिकेट डिग्री फ़ी कर रहे हैं तो मैंने इसको किया सिलेक्ट। यहाँ से मैं प्रोग्राम सेलेक्ट कर लूँगा, मेरा भाई कौन सा है प्रोग्राम, ये तो सॉरी वेरिफिकेशन की है, मैंने करनी है डिग्री सर्टिफिकेट फ़ी, राइट। ये हो गया जी। यहाँ पे अब आपने डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए जी, ये अर्जेंट फ़ी है, मैट्रिक इंटरमीडिएट की, ये नीचे ये नॉर्मल फ़ी है, ये अर्जेंट फ़ी है। तो आप जो भी करना चाहते हैं, जल्दी चाहिए, वैसे टाइम 45 डेज़ लग जाते हैं, अर्जेंट करें या नॉर्मल करें तो आपकी मर्ज़ी है। इसको आप ऐसे करें और कर लें डाउनलोड, तो चालान आपके पास आ जाएगा। ये जी चालान आ गया। आप इसको इसी तरह कंट्रोल P करेंगे, सेव एज करके डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके प्रिंट निकाल लेंगे, राइट। ये तो हो गया डिग्री का। अब आप रीअपीयर फीस निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीअपीयर एग्ज़ाम फ़ी आएगा, रीअपीयर एग्ज़ाम फ़ी, यस। ये अगर अब आप यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिग्री कौन सी थी, बैचलर थी, जो भी थी वो डिग्री सिलेक्ट कर ली, कितने सब्जेक्ट रीअपीयर थे, राइट, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे, 4 थे 5 थे, जितने भी थे। फर्ज करें मैंने 5 सब्जेक्ट रीअपीयर का चालान निकाला है तो एक 1500 फीस बनी है, तो ये भी आप चालान निकालेंगे। 2 चालान आपके पास हो गए, यहाँ पे ये चालान नंबर लिखा हुआ है, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे वो दोनों चालान नंबर लिखने हैं, चालान नंबर 1 चालान नंबर 2, एक डिग्री वाला रीअपीयर वाला। रीअपीयर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है एक चालान लिखेंगे, एक ही ट्रांजैक्शन आईडी होगी। ये सारा जी क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया, फॉर्म भी फिल कर लिया है, दोनों रिजल्ट कार्ड भी निकाल लिए हैं, चालान भी निकाल लिया है। चालान आप बैंक में इजी पैसा से पे कर देंगे, वो जो ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएगा। अब आप आ जाएंगी, एक इस तरह का खाकी लिफाफा ले लेंगे। इस खाकी लिफाफा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाल देनी है, पेड चालान, डिग्री फॉर्म, यानी ये चालान हो गया आपका। उसके बाद क्या हो गया, ये फिल शुदा फॉर्म हो गया, चालान हो गया आपका, जो CMS पोर्टल से आपने रिजल्ट कार्ड निकाले थे वो हो गए। उससे आपने जो डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, फर्ज करो ग्रेजुएशन की, BA की, तो मैट्रिक और FA की जो आपकी असल सनद है उसको आपने फ़ोटो कॉपी करवानी है, वो किसी टीचर से टेस्ट करवा लेना है, शनाख्ती कार्ड की कापी टेस्ट करवा लेनी है। 3 चीज़ें टेस्ट करवा ली,
एमए की डिग्री के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिक या फिर बीए की असल सनद की फ़ोटो कॉपी करवा के तस्दीक करवा लेनी है बाय नेम स्टैंप से। इसमें ना स्टैंप करने वाले का नाम, ओहदा, डिजिग्नेशन, एड्रेस वगैरह लिखा हो, वो आप जनाब तस्दीक करवा लेंगे तो 7 पेज चालान लगा देंगे। डिग्री फार्म हो गया, मैट्रिक, इंटर, बीए, ये जो ज़रूरी होंगी जो आपके पास, यानी जिस डिग्री की अप्लाई करें उससे पहले वाली सारी डिग्री की फ़ोटो कॉपी, पेड चालान, CNIC की कॉपी, डिग्री फार्म फिल शुदा, ये जनाब आप ले लेंगे, एक इन्वेलप ले लेंगे। यहाँ पे आपने देखे कि आपने स्टूडेंट का नाम लिख दिया, तालिब इल्म अपना एड्रेस लिखे, बैक साइड के ऊपर, ये बैक साइड है, यहाँ आपने चिस्पा करना है, और जो फ्रंट साइड है वहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का मुकम्मल एड्रेस लिख दिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है, बैक साइड पे अपना एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इस इन्वेलप में बंद करनी है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री करवा देंगे। फिर क्या होगा जब आप ये कर देंगे, बाकी आपसे दरख्वास्त है कि ये न्यू चैनल है, पहले मेरा एक और चैनल था, मैंने AIUU का मुकम्मल तौर पे अलग कर दिया। सारी वीडियोस आज के बाद आपको AIUU के हवाले से मिलेंगी। ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना हो, तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल है एक, तो आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट और आगे फ्रेंड को लाजमी शेयर कर देना है। आ जाएँ जी कि अब आपने लास्ट सेक्शन हमारा था, ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब आपने यूनिवर्सिटी को भेज देनी है। यूनिवर्सिटी को भेजने के बाद आपने कुछ दिन बाद अपना सारा रिकॉर्ड ट्रैक करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AIUU DTS, ये डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम है, यहाँ इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन आएगा। यहाँ पे जनाब अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के तो आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे केस जो है वो मुकम्मल तौर पे शो हो जाएगा। मैं फ़र्ज़ करो एक स्टूडेंट का जो ट्रैक करके आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने BA के लिए अप्लाई किया था, ये आप देख सकते हैं जी कि ट्रांसक्रिप्ट इनको जारी हो चुकी है, ये नाम है जी इस एड्रेस पे, तो वाकई स्टूडेंट को जो डिग्री है वो जारी हो चुकी है। आपने ये लाजमी ट्रैक करते रहना है, क्योंकि ट्रैकिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपकी डिग्री कहाँ तक पहुँची है, तो ये ज़हन में रखना है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन लगता है, कोई इशू बनता है, तो वो आप इसको देखते रहेंगे। यानी जब आपने बाई पोस्ट डॉक्यूमेंट भेज देने हैं तो भेजने के बाद ये AIUU ट्रैकिंग वाला जो है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे कि आपकी डिग्री का मौजूदा स्टेटस क्या है। इस हवाले से अगर आपका कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई इशू हो, ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो। बाकी लास्ट में आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना है। अगली किसी लेटेस्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।